All right. Thank you very much. Finally, we can hear each other. That's such a good news. Thank you very much. So, So this is what is happening during the pandemic. We don't know how long will our meeting last also. and So this is even causing stress. Exactly. yeah. So, um, okay, guys. So what we do now, we actually we are discussing that you got married and you moved with your lovely husband here. तो आप वहाँ से एक बार quickly introduce करिए अपने आप को, please. Sorry. You just, I think the last thing that I hear you is that you got married and you moved to Pune. Okay. Yes. So basically now I am working here through mainly telemedicine and telepsychiatry right now. Okay. So that is also this is a challenge for me because I had also not done telemedicine before, Okay. and I am learning new aspects about that. And it is definitely a useful tool to reach for people to reach out to professionals so that they can get help. When right now it is difficult to move out in person. Beautiful. Thank you. So you mentioned two words, psychiatry and telemedicine. I come to this later. I have very important question for you, Disha. And this is, I've been hearing so many questions. Why mental health is so important, and especially in this time where the corona thing is there, people are losing job, people are losing the financial touch, the people are really challenged. So why you think, and based on your experience, why you think this your field is so important now? Okay. So since always mental health, physical health have gone hand in hand. Okay. So you cannot be physically healthy if you're not mentally healthy, and vice versa. Correct. Okay, so they both are very intricately related and important. Okay. And now this pandemic has predicted that it will cause a pandemic of mental health issues as well. Okay. So that is going to be another task, that issue that has to be really dealt with. So because the situation, the environment we are living in, the way we know how to live, हमको जैसे जीना है वो बिल्कुल बदल चुका है. Right. हमारी जो फ्रीडम है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गई है. Okay. हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो हमको इतने सालों से हैबिट थी एक तरह से जीना, जब सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से हमारा जो एक डेली पैटर्न हम जिसमें सेट है तो वो डिस्टर्ब हो गया, तो वी गेट स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ दैट. Okay. ऑल्सो एक फियर ऑफ इन्फेक्शन है. Right. ये एक फियर में ये नई चीज है, ये नोवेल कोरोना वायरस. Right. तो हमको पता नहीं है एग्जैक्टली ये ट्रांसमिट कैसे हो रहा है. साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स आल्सो वर्किंग. Okay. Okay. बेसिकली इट इज टफ रिगार्डिंग दैट आल्सो. Okay. All right. तो इसमें आपने एक वर्ड यूज करा, इट विल कॉज द पेंडेमिक ऑफ मेंटल हेल्थ इशू. सॉरी, जस्ट अ मिनट. That's okay. Yeah. अभी आपने Can you just कहा कि इट्स अ पेंडेमिक ऑफ मेंटल हेल्थ. तो यस, तो मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि पहले हमारा अभी कितने आते हैं, अभी कितने केसेस बढ़ गए क्या? बहुत सारे. हाँ, अभी अब जैसे हम देखें केसेस तो डेफिनेटली बढ़ गए हैं. और अभी अगर हम स्पेसिफिक डिसऑर्डर भी ना बोले जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, पर एक स्ट्रेस लेवल डेफिनेटली बढ़ गया है सारे कम्युनिटी. Okay. और ये स्ट्रेस लेवल अगर उसको ठीक तरह से हैंडल नहीं किया गया तो ये आगे जाके सीवियर मेंटल इलनेसेस बन जाते हैं. जैसे कि मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ इश्यूज में भी माइल्ड फॉर्म्स होते हैं, सीवियर फॉर्म्स होते हैं. Right. तो अभी almost all of us at some level are facing stress because of this change in structure, right? Even work from home, जैसे अभी हम देख रहे हैं, हम लोग सब यहाँ पे बैठ के अपने घर में बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं, right? Yes. So this work from home में जो वर्क और होम की जो लाइन है, Yes. वो बिल्कुल ब्लर हो गई. Right. वर्क लाइफ बैलेंस एक तरह से हिल गया है. Right. हम कब काम करते हैं, कब आराम करते हैं, कब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो सब कुछ उसका स्ट्रक्चर चला गया है. एक दूसरे में मिल गया. करेक्ट. यस. तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है. और एक और चीज जो है वो है कि फ्यूचर का अनसर्टेनिटी. अभी एक पहले हमारा प्लान था कि अच्छा ये मेरा चल रहा है, ये जॉब मैं अभी इतने साल तक काम करूंगा, इतना रिटायरमेंट होगा, मैं अपने हेल्थ का इस तरह से जिम जाके ध्यान रख रहा हूँ और ये सब ठीक चल रहा है. अभी डिरेल कैसे हो गया, लॉकडाउन हो गया, मेरा जिम बंद हो गया, मेरी हेल्थ खराब हो रही है, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ या फिर मेरी जॉब ही बंद हो चुकी है. तो आगे क्या होगा, फ्यूचर अभी बिल्कुल अनसर्टन है. तो ये अनसर्टनिटी डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल्स बढ़ाती है, डिप्रेशन बढ़ाती है. फाइनेंशियल अनसर्टनिटी जो है उसकी वजह से भी स्ट्रेस बढ़ते रहता है. एंड द स्ट्रेस इज बाउंड टू हैपन. वो एक स्वाभाविक चीज है जो होगी. Okay. तो इसलिए ये स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है.
और इससे आगे पैंडेमिक कैसे हो सकता है मेंटल हेल्थ इश्यूज का, कि डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, स्लीप इश्यूज होंगे, जो हो भी रहे हैं काफी लोगों को अभी। तो ये सब मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। एक बात बताएं कि ये कई बार ऐसा बोला जाता है कि इंडियंस आर वेरी स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, हमारी फैमिली बड़ी स्ट्रांग रहती है, विदेश में तो फैमिली नहीं है इसलिए वहां पर उनको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है और वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, और इस तरह के मैं बोलूंगा थोड़े अनसोलिसिटेड व्यूज है जैसा बोला जाता है। तो इसका मेरे एक बात बताए कि जब हम देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग स्ट्रेस लेवल जो बढ़ रहा है, तो हर चीज हमें पेंडेमिक के नाम पर ही सोचना है कि ओवरऑल एक मेंटल हेल्थ इश्यूज है इंडिया में। अभी पिछले 5 साल देखे, अभी देखे और आने वाले जनरेशन देखे, तो हेल्थ इश्यू इज ए कंसर्न आपके हिसाब से कि वी आर एज ए नेशन वी आर वेरी फिट। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? डेफिनेटली जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरा, मेंटल हेल्थ इश्यूज को थोड़ा बैक बर्नर पे रखा जाता है और वो इतने बाहर नहीं आते। मेनी टाइम्स इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि लोग मदद मांगते हैं। तो कैसा है कि कभी कभी कैसा होता है कि अंदर कुछ तो चल रहा है, देयर इज अ से पीस ऑफ फर्नीचर, अंदर कुछ तो है, ऑलरेडी टर्माइट है, अंदर कुछ चल रहा है, बाहर दिख के नहीं आता। पर समझो एक कुछ बड़ा ब्लो आया तो सारी चीजें बाहर आती है। दिस पैंडेमिक इज दैट ब्लो, एक बहुत बड़ी सोशियो कल्चरल चीज अक्रॉस आवर एंटायर वर्ल्ड एंड नेशन, और ये बड़ी स्ट्रेस की वजह से जो ऑलरेडी मेंटल हेल्थ इश्यूज थे वो और सामने आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज पहले थे ही नहीं। अब ज्यादा बाहर आ गए हैं। एंड रिगार्डिंग फैमिली, ऑफ कोर्स लाइक मैन इज अ सोशल एनिमल, एंड हमारा जो सोशल फैब्रिक है हमारे देश का, वो डेफिनेटली एक एडवांटेज है हमारे लिए। हमारा जो सोसाइटी है वो मोर कोहेसिव है, हम ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं। इनफैक्ट हमारा फैमिली स्ट्रक्चर भी जो होता है वो ज्यादा जॉइंट फैमिली बेस्ड या एक्सटेंडेड न्यूक्लियर बेस्ड होता है। सो वी हैव मोर ऑफ फैमिली इंटरेक्शन। और अभी के टाइम में शायद वो भी कम हो गया है, राइट? लोगों का मिलना जुलना कम हो जाता है। तो इस समय में ये स्ट्रेस से कॉम्बैट करने के लिए ये जरूरी है कि हम वर्चुअली कनेक्टेड रहें। तो अगर आप अपने परिवार वालों को मिल भी नहीं पाते तो ये बहुत जरूरी है कि उनसे फ्रीक्वेंटली फोन पे, वीडियो पे बातें करते रहें, क्योंकि सोशल सपोर्ट वो बहुत जरूरी है। Very nice. जैसे कि ये जो मेंटल इलनेस होता है उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक बायोलॉजिकल होता है, एक साइकोलॉजिकल होता है और एक सोशल होता है। तो बायोलॉजिकल मतलब हमारे जो ब्रेन के केमिकल है सारे वो, उनका जो ऊपर नीचे होना, तो उस पे हम सिर्फ दवाई से नियंत्रण कर सकते हैं। और जो साइकोलॉजिकल है वो हमारा जो अंदर का माइंड है, जिसमें हमारे थॉट्स है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं एक हद तक। और जो सोशल पार्ट है, यानी कि हमारा सोशल सपोर्ट, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, तो ये जो साइकोलॉजिकल और सोशल पार्ट है उसको एज अ पर्सन हम कंट्रोल करें तो हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज इंप्रूव। वाओ, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई पैटर्न है कि ये मेल को ज्यादा हो सकता है या फीमेल को होगा, कि वर्किंग क्लास को होगा, कि बिजनेस वालों को होगा? ये इज देयर अ पैटर्न देयर कि बच्चों को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फैमिली सिचुएशन से क्या हो रहा है? इसका जरा थोड़ा बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि टेल मी हाउ वी कैन कोप विद दिस स्ट्रेस, आई एम वर्किंग, आई हैव बिजनेस, आई हैव किड्स, तो आपकी तरफ से एक अच्छी सिचुएशंस क्या हो सकती है स्ट्रेस से डील करने के लिए कोरोना के समय भी, और इसको हम कोप कैसे कर सकते हैं, हमारे बच्चों को कैसे बचा सकते हैं इस चीजों से? ओके, तो मैं जो ये सारे क्वेश्चंस है उसको पार्ट बाय पार्ट आंसर करना चाहूंगी। तो जैसे कि फर्स्ट थिंग आपने पूछा कि ये किसको अफेक्ट होता है, मेल को, फीमेल को। तो जैसे कभी भी हमारे पास जब एक पेशेंट आता है तो हमारे गाइडलाइन सारे, हमारा बुक्स, लिटरेचर सब एक तरफ, पर हम उस पेशेंट को, उस इंसान को एज अ पर्सन इंडिविजुअली देखते हैं। तो हर पर्सन डिफरेंट होता है। तो जैसे कुछ डिसऑर्डर है, कुछ चीजें हैं, मेल्स में भी ज्यादा हो सकती है, फीमेल्स में भी ज्यादा हो सकती है। फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे फीमेल्स इंटरनलाइज ज्यादा करती है, तो उसका मतलब है कि जो भी स्ट्रेस है तो फीमेल्स अंदर की साइड ज्यादा अफेक्ट ले लेती है, और जो मेल्स है उनका एक्सटर्नलाइजिंग का टेंडेंसी होता है, तो वो शायद चिड़चिड़ापन, अग्रेशन की तरह बाहर आता है। और फीमेल्स का इट माइट हैपन कि उनको बॉडी पेन हो सकता है, सर दर्द ज्यादा बढ़ सकता है,
राइट ओके। राइट और बॉडी इश्यूज हो सकते हैं, ओके कई तरह के दर्द होना राइट और उदासी लगना, मायूसी लगना, तो ओके ऐसे कुछ डिफरेंसेस है। पर राइट ऐसा नहीं है कि कोई भी इस चीज से इम्यून है, ओके किसी को भी ये हो ओके सकता है, कभी भी हो सकता है। राइट ओके। एंड देन रिगार्डिंग अभी जैसे मैंने वो बायो साइको सोशल ये जो मॉडल है, उसे यस हम जो साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो करेक्ट हम साइकोलॉजिकली कैसे स्ट्रॉन्ग करें, वो मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे हम ये डैम बनाते हैं रिवर्स पे, राइट? राइट तो एक डैम की ऊंचाई होती है, समझो 50 फीट है, राइट तो पानी चला जाता है उसके ऊपर से, यस राइट? तो पानी का फोर्स रिवर जो होता है उसको हम बदल नहीं सकते, राइट पर हम डैम का हाइट 100 फीट कर सकते हैं। तो जैसे वैसे ही ओके स्ट्रेस जो है या फिर स्ट्रेस है या तकलीफें है लाइफ में, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमें फोकस करना है जो हमारे कंट्रोल में है, तो हमको डैम को बड़ा बनाना है। तो डैम मतलब हमारे लाइफ में रेजिलियंस होता है। तो रेजिलियंस क्या बात हो गई कि Yes. हम कैसे उस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं, उस क्षमता को हम बढ़ाए। ओके तो हम हमारी स्ट्रेंथ टू फाइट दोस प्रॉब्लम्स उसको बढ़ाए, तो ये हम साइकोलॉजिकली उस पर वर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक मिनट रोकना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिशा जी, एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ पर एक आदमी है, दोनों दे बीन टू द सेम सिचुएशन, दे वर्किंग फॉर द सिमिलर जॉब, सिमिलर लाइफ स्टाइल, सिमिलर फैमिली स्ट्रक्चर, सिमिलर, लेकिन वन पर्सन गेट इनटू द डिप्रेशन, एंजाइटी और सब चीजें शुरू हो जाती है, द अदर पर्सन रिमेन्स एज इट इज। तो ऐसा क्या होता है कि दिखने में दोनों बाहर से एक ही जैसा दिख रहा है, तो फिर व्हाट स्टार्ट्स टू इम्पैक्ट, वो आप थोड़ा हमें उसको तो एक तो बताइए। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई सेड कि एक उनका एक जेनेटिक चीज होती है ओके कि आपके हार्मोन्स, जो ब्रेन के हार्मोन्स, ब्रेन के केमिकल्स होते हैं, उस तरह से वायर होते हैं कि आप वल्नरेबल हो, आपको होने के चांसेस ज्यादा है। ओके ओके, तो ओके वो एक एस्पेक्ट है। दूसरा है कि आप साइकोलॉजिकली आपकी कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या है। तो ये कोपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओके आपके सामने एक प्रॉब्लम आया, तो राइट आपकी कोपिंग स्टाइल क्या है। अब कोपिंग स्टाइल भी अलग अलग होती है, जैसे अप्रोच या फिर अवॉइडेंट। ओके तो अप्रोच में मैं क्या करूंगी कि मैं जाके उस प्रॉब्लम को फेस करूंगी, ओके और जैसे कि अभी एक प्रॉब्लम है, तो मैं लिस्ट बनाऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम है, ओके मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगी। ओके मुझसे अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं मदद मांगू। तो ओके। ये मैंने सामने से जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश तो मदद मांगना बुरी Sorry. बात तो नहीं है? अगर मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ कि मेरे को परेशानी है, नहीं, तो फिर तो आप मुझे मानेंगे कि ये तो नहीं, पागल हो गया है, ये तो उसको ये हो गया है सर। नहीं, मदद मांगना इनफैक्ट सेंस ऑफ फील लिटिल लो कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ऐसे लोग बोलते हैं कई बार कि मैं क्यों मदद मांगू, अगर मैं जाके मदद मांग रहा हूँ इट मींस आई एम नॉट पावरफुल इनफ। तो ये आप को ये जो मेंटल बैरियर से इसके लिए हम कैसे करें, क्योंकि अगर लोग हेल्प मांगते तो इनहेरेंटली गिल्टी कॉन्शियस होता है, उनको एक अपराध बोध होता है कि मैं हेल्प मांग रहा हूँ। मैं सॉरी, मतलब मैंने आपको इंटरप्ट करा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे से पूछने के लिए। तो ये हेल्प मांगना अच्छी बात है। डेफिनेटली। देखो, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये होती है कि हम इंसान है, हमारे कुछ है। जब वो बात हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे में भी कुछ खामी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम परफेक्ट तो नहीं है। फर्स्ट स्टेप डूइंग दैट, आई हैव सम स्ट्रेंथ, आई हैव सम वीकनेस, और उस वीकनेस को पार करने के लिए मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे मदद लेनी। और जब मैं मदद लूंगा, मैं अपने आप को बेटर बना सकता हूँ, और उस वीकनेस को ब्रिज करके उसको मेरी स्ट्रेंथ बना सकता हूँ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वाओ, वेरी नाइस। मदद मांगना इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, वो बहुत ही अच्छी बात है। दैट्स अ न्यूज़, थैंक यू। यस, बिकॉज आपको पता चल रहा है कि हाँ, मुझे कहीं जरूरत है, और ये एक साइन ऑफ मैच्योरिटी है कि हाँ, मैं मदद मांग रहा हूँ, मैं 100% सही नहीं हूँ, 100% काबिल नहीं। ओके, वाह, वेरी नाइस। बच्चों के बारे में बताइए, बच्चों को इससे कैसे कर सकते हैं, फिर उसके बाद में कपल्स की तरफ हम आएंगे। बच्चों को कैसे इससे प्रिपेयर करा जाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा बेटा है और नीचे जाके कई बार खेलते हैं, बात छोटी सी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि बच्चे आपस में लड़ते हैं और कुछ लोग भाई के भाई सब सेट कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे रोते रोते मम्मी पापा के पास में आते हैं। तो उस समय एज ए पेरेंट हमें क्या करना चाहिए? हमें बोलना चाहिए कि बेटा आप जाके अपना करो, कि हम बच्चे के साथ में जाके वहां पर पेरेंट्स बनकर और सुलझाए? व्हाट शुड बी अ मैच्योर्ड साइंटिफिक अप्रोच? आपको क्या लगता है?
सो टू बिगिन विद पेरेंटिंग में एक चीज होगी कि जो बच्चे होते हैं वो हमारे जो बिहेवियर होता है वो मिरर करते हैं। ओके तो सबसे पहली बात एज अ पेरेंट किसी को भी ये देखना चाहिए कि मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ। ओके जैसे मेरे लाइफ में कोई सिचुएशन आ गई, मेरा किसी से झगड़ा हो गया, मैं किसी से फोन पे बात कर रहा हूँ, तो मैं मेरे माई सेल्फ मैं कैसे कंडक्ट कर रहा हूँ, ये आपके बच्चे पे एक इम्प्रेशन पड़ जाती है। राइट तो यदि मैं झगड़ा करके और मैं अच्छी तरह से बिहेव नहीं करता तो आगे जाके प्लेग्राउंड में बच्चे का यही बर्ताव होगा। ओके या फिर आप बहुत ही लेट गो कर देते हो, आप सहन करते रहते हो, तो बच्चा भी यही करता रहेगा, नहीं किसी को कुछ बताना नहीं है, मैं ऐसे ही चलने दूं। तो पहली बात ये है कि आप अपने बिहेवियर को कैसे करते हो कॉन्शियसली ध्यान रखें घर में। ओके दूसरा ये है कि बच्चा कौन सी सिचुएशन के थ्रू गया उसको समझिए, तो उससे बातें कीजिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज जो कभी कभी हमारे यहाँ मिसिंग हो जाता है इज ओपन कम्युनिकेशन फ्रॉम चाइल्डहुड। हम इतना कम्युनिकेट नहीं करते बच्चे को और हम उनसे बिल्कुल बच्चों की तरह बात करते हैं या उनको पूरी बात नहीं बताते। अभी जैसे ये पैंडेमिक के बारे में भी, तो अभी बच्चों का भी एकदम स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। जैसे उनका ऑनलाइन चालू हो गया है, बाहर नहीं जा सकते, फ्रेंड्स को इतना मिल नहीं सकते। तो बच्चों से कैसे डील करना कि उनको सरल भाषा में बताए कि ये क्या सिचुएशन है। और बच्चे समझदार होते हैं, हम उनको भले ही छोटे हैं, हम समझते हैं कि नहीं ये सिचुएशन को ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे, पर उन्हें सरल भाषा में आप बताए कि ये क्या सिचुएशन है, आपको कैसे करना है बिहेव। और इवन किसी भी चीज के लिए, जैसे अभी जैसे चिड़चिड़ापन या अगर बच्चे हाइपर ज्यादा हो रहे हैं तो एक शेड्यूल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। खुद के लिए भी बच्चों के लिए भी। घर में जैसे इवन मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि मैं अभी मेरे लिए भी मैं एक शेड्यूल रखती हूँ। तो अभी आई डोंट हैव चिल्ड्रन एट होम, पर इवन विद चिल्ड्रन इट वुड बी मच बेटर, क्योंकि जैसे कि आपने मॉर्निंग 2 आवर्स इसके लिए डेडिकेट किए, तो एक टाइम टेबल बना देना है, तो ताकि आपका वर्क एंड स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली ये सब सेपरेट रहे। तो उससे आप फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम रहेंगे और आपका वर्क स्मूथली जाए। दिशा जी, सुशांत सिंह राजपूत ये नाम पीछे बहुत ही वो हो गया था, और अचानक से लोगों को लगा कि एक्सटर्नल हैप्पीनेस कैन नॉट गारंटी यू इंटरनल पीस। तो और हम देखते हैं कि स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा है, डिप्रेशन भी बढ़ रहा है। तो हमारे यहाँ पे कुछ लेडीज भी अभी जुड़ी हुई है, कुछ उनके क्वेश्चंस भी, हमें उनके लिए भी टाइम थोड़ा निकाल के अलग रखना है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी पूछेंगे। मैडम, अगर मुझे पता करना है एज ए अवेयर पर्सन, एज ए पढ़ा लिखा आदमी, एक इंडिविजुअल है, तो अगर मान लो मैं स्ट्रेस में जा रहा हूँ, अगर मैं डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूँ, तो ऐसे कोई साइंस है जिसको मैं देख के समझ सकता हूँ कि दिस इज नॉट हेल्थी साइन, अब ये टाइम आ गया है कि मैं हेल्प लूं? क्या ये इसमें सुसाइडल प्रोपेंसिटीज, आई एम सॉरी ये थोड़ा बात बोलने नहीं चाहिए, लेकिन सुसाइडल प्रोपेंसिटीज की तरफ मेरे दिमाग में क्यों आता है? इज इट वेरी सीरियस? थोड़ा इस बारे में आप थोड़ा सा बताइए। मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, हमारे पास में 10 मिनट है, तो आप अगर 2 या 3 मिनट में बोले, देन आई वांट टू गिव सम चांस टू माय ऑडियंस, देन वी कैन आप प्लीज थोड़ा वैसा करिए। सो अबाउट सुसाइड, प्रॉब्लम वही है कि वी डोंट टॉक इनफ अबाउट इट। हमको बात करनी है इसके बारे में, और सिर्फ तब नहीं जब एक किसी सेलिब्रिटी या किसी फेमस व्यक्ति की सुसाइड की खबर आए। तो क्योंकि ये जब सरफेस के नीचे चलता रहता है तब हम इस पे ध्यान नहीं देते, राइट? और ये डेफिनेटली जब ये लाइमलाइट में आता है तब ये किस्सा बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो टू से शॉर्ट कि क्या मेंटल हेल्थ सिम्टम्स होते हैं, तो जैसे कि उदासी लगना, निराशा लगना, और ये लगातार दिन भर लगना। और उदासी और निराशा अगर जैसे शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाती है, और फिर अचानक आपको व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है, और जैसे उनका इंटरैक्शन कम हो जाता है, वो बातें कम करने लगते हैं, अकेले अकेले से रहने लगते हैं, या फिर आपको या किसी और को काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, लगातार नेगेटिव विचार आते हैं, खुद को हार्म करने के विचार आते हैं, और भी चीजें होती है एंजाइटी की तरफ जो पॉइंट आउट करती है, जैसे घबराहट सी होना, छाती में धड़धड़ होना, पसीने छूटना, छाती भर आना, ऐसा कभी लगता है कि जान ही जा रही हो जैसे,
ऐसा Okay. कई बार बोलते हैं जो एंजाइटी में होता है। Okay. और सबसे पहले कभी कभी जो पता चल जाता है वो है कि स्लीप में चेंजेस होना और खाना ज्यादा खाना या फिर खाना बिल्कुल नहीं खाना। Okay. तो ये सारे जो सिम्टम्स है ये पॉइंट टुवर्ड्स लाइक Early मेंटल हेल्थ indications है. इश्यूज। Early indications है. Okay. Okay. Very nice. तो मैडम हम एक दो क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछता हूँ क्योंकि एंड दिस इज लिटिल फनी सो प्लीज डोंट गेट अपसेट इफ आई आस्क एनी फनी क्वेश्चन जस्ट टू मेक इट लिटिल लाइट। आपकी आपके हस्बैंड की कभी लड़ाई होती है क्या? कभी कुछ बातचीत होती है क्या? आई डिडंट गेट यू, सॉरी। मतलब एज अ डॉक्टर यू आल्सो हैव योर ओन पर्सनल लाइफ, यू आल्सो हैव टू डील विद योर लाइफ सिचुएशंस। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी कभी आपके हस्बैंड से आपके कुछ बिकरिंग थोड़ी बहुत बातचीत होती है तो उस समय आप कैसा डील करती है? तो यू बिकम ए डॉक्टर, बिकम ए वाइफ, उस समय क्या करती है आप? सो आई थिंक मेरा एज माय रोल्स मेरा जो साइकियाट्रिस्ट का रोल है वो एक अलग रहता है और जब मैं एक वाइफ के रोल में रहती हूँ तो डेफिनेटली मेरे जो एक्सपीरियंसेस है एज अ साइकियाट्रिस्ट मैं डेफिनेटली एम्प्लॉय करूंगी। और हाँ, छोटी मोटी बिकरिंग तो डेफिनेटली होती है पर एज एवरी कपल हैज देयर ओन सेट ऑफ रूल्स। तो हमारा जो रूल्स और रिलेशनशिप का ये है तो हम कम्युनिकेशन ओपन रखते हैं, हम बंद नहीं करते, हम बात करना बंद नहीं करते। तो कभी भी कुछ इशू तो ओके हम बात करते हैं उसके बारे में, तुम बताओ तुमको क्या लग रहा है, मैं बताती हूँ तुमको क्या लग रहा है और उसको सॉल्व करके फिर वही खत्म। तो आसानी से बोल रही है राइट ये मतलब बट इट टेक्स लॉट ऑफ मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग। तो कपल्स के लिए आपके पास में कोई गोल्डन सूत्र है कि किस तरह से कपल्स इस समय जब स्ट्रेस सब तरफ है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, रिलेशनशिप स्ट्रेस है, मेंटल इश्यूज है और आई एम सॉरी वर्ड इतना बुरा नहीं है लेकिन हम आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर हम ये लग रहा है तो आप कुछ ऐसे 1 or 2 क्विक पॉइंटर्स देंगे जिससे लगे कि यस द कपल्स कैन हैंडल द सिचुएशन इन अ मच बेटर वे। द फर्स्ट थिंग इज एक चीज हमेशा याद रखना, यू बोथ आर ऑन द सेम टीम। ओके, कभी कभी हमारा जो स्ट्रेस है वो एक डिस्प्लेसमेंट की तरह सबसे पहले हमारे स्पाउस पे ही चले जाता है। Okay. स्ट्रेस किसी का ही होगा, वर्क का होगा, इधर उधर का होगा, पर वो चला जाता है स्पाउस पर। तो वो कॉन्शियसली अवॉइड करना है। याद रखना है, मैं मेरे बॉस से गुस्सा हूँ या मैं मेरी हस्बैंड या वाइफ से गुस्सा हूँ। तो वो डिस्प्लेसमेंट जब होता है कहीं और तो आपका पार्टनर, आपका स्पाउस भी उस तरह कंफ्यूज हो जाता है, ये समझ नहीं पाता कि एंगर कहाँ से आता है। और जब वो एंगर इज नॉट अंडरस्टूड तो सामने से फिर से एंगर आता है। When there is anything which is not understood, we don't know about it, तो उसका रिएक्शन एंगर और अग्रेशन आ जाए तो वो हमारा एनिमल इंस्टिंक्ट, एनिमल रिस्पॉन्स हो जाता है। तो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज दैट वी आर ऑन द सेम टीम और इधर डिस्प्लेसमेंट अवॉइड करना है। ओके, एंड एवरी मॉर्निंग और एवरी नाइट व्हेन यू हैव सम टाइम आप अपने पार्टनर से फ्रीली कम्युनिकेट कीजिए। 10 मिनट आप बातें कीजिए आपके दिन के बारे में, आपके स्ट्रेस के बारे में, आपके वारिंग के बारे में। आप शायद दोनों ही सेम चीज वरी कर रहे हो कि अरे फाइनेंस का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा। तो अगर बात करते हैं ना तो वो झगड़ा जो होता है ना वो एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वाओ, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। दिशा जी, मुझे तो लग रहा है कि ये आधे पौन घंटे का नहीं, इसके लिए तो पूरा दिन भर का सेमिनार चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी है मेरे पास में और लोगों को भी क्वेश्चंस हो गए। लुक, द पर्पस ऑफ दिस स्मॉल टॉक इज टू जनरेट अवेयरनेस और मैं तो हर किसी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्पीक अबाउट इट। दिस इज वेरी वेरी कॉमन, एवरीबॉडी इज इन द सेम बोट। आप इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, आई रिक्वेस्ट, आर देयर एनी क्विक क्वेश्चंस? डॉक्टर वनीश्री, शी वर्क्स विद सिम्बायोसिस एंड स्वाति, शी इज आल्सो रेगुलर टू अस एंड दिस आर द कॉमन पीपल दे कम्स टू अस। तो किसी को अगर कोई क्वेश्चन है, हमारे पास में 7 मिनट्स है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल हमारे पास में बहुत अच्छा मौका है कि डॉक्टर दिशा इज राइट हियर। आपको ज्यादा स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है, यू कैन टेक हर अपॉइंटमेंट अबाउट दिस, शेयरिंग हर नंबर एंड यू कैन गो एंड टॉक टू हर, दैट्स नॉट गोइंग टू बी एन इशू। तो अभी मैं पूछता हूँ, किसी को कोई क्विक क्वेश्चन है जो मैडम से पूछ सकते हैं? हेलो, कैन यू हियर मी? यस स्वाति, आई कैन हियर यू। डॉक्टर दिशा, कैन यू हियर स्वाति? या how we recognize it is anxiety or stress or some depression? तो sorry I didn't get। मैडम शायद इनका क्वेश्चन ये है कि हमें कई बार नॉर्मल चिंता भी होती है
ठीक है, तो वो नॉर्मल चिंता है कि वो डिप्रेशन वाली चिंता है, इसको पता कैसे करेंगे कोई हम? तो जैसे कि डिप्रेशन की जो उदासी होती है, जैसे मैंने बताया कि वो दिन भर रहती है, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं परवेजिव। परवेजिव मतलब पूरा दिन ही चलते रहता है, और कभी कुछ अच्छी बात हुई या कुछ आपको पसंद है वो आप करो, फिर भी वो चिंता या वो जो उदासी है वो जाती नहीं है, वो कंटिन्यूस रहती है। और कभी कभी जब जो सिम्टम्स है वो एक हफ्ते से ज्यादा अगर रहे तो ये एक बात है कि ये समय रहेगा, आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को मिलना चाहिए, क्योंकि जब एक हफ्ते या कंटिन्यूअस चीज रही तो मतलब कि कुछ और प्रोसेस चल रहा है, ये सिर्फ नॉर्मल मामूली चिंता नहीं है। और ऑल्सो ऐसा है कि कभी कभी कुछ स्ट्रेस आया तो हमारा एक नेचुरल फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, वो एक नेचुरल वाइल्ड चीज है जो एनिमल्स से हमारे तक एवोल्यूशन में आई है। तो कभी कभी चिंता एक नॉर्मल रिस्पॉन्स की तरह शुरू तो हो जाती है, पर फिर वो इतनी बढ़ती जाती है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो अब हो जाता है, फिर उसका कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं है। तो वो चीज करना है कि जब ये चिंता आपको आपका नॉर्मल काम नहीं करने दे रही, आपका नॉर्मल काम आप नहीं कर पा रहे हो, आपके नॉर्मल खाने पीने सोने में ये तकलीफ कर रही है, और ये जो आपकी दिनचर्या है आप पूरी नहीं कर पाते, ये इमोशंस की वजह से, ये चिंता या डिप्रेशन के लक्षणों की वजह से, तो तब आपको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की सलाह जरूर लेनी चाहिए। Thank you very much. Thank you. Swati ji, I hope that answers your question. Dr. Vanishri, you want to ask any question? Yes, sir. First and foremost, that was a wonderful session by ma'am, I would say. Thank you very much for this opportunity provided at this platform. The question that I have is, ma'am said that if it is prolonged, what do I say? Somebody is upset for a week or so, that's the time when we have to see the practitioner. But then sometimes it happens that, after a week or after 10 days, when we talk to somebody who's really close to us, the problem actually gets resolved. So there are phases in life. So when is the right time that we think that which indicates that this is the right time and this is the real problem that has to be addressed? How does one know about it? So that is the thing that, like, when at a psychological level, there are many things which you can do yourself to help to ease your worries and pain. तो जैसे मैंने बताया कि this is a spectrum. ऐसा नहीं है कि at A point you have nothing and at B point you have severe depression. So it is like it gradually builds up, and that is why ये कुछ जो techniques है, जैसे कि friends and family से connected रहना, तो definitely friends and family will be your best counselors. वो आपको अच्छे से जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, उनको कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेंथ वीकनेसेस पता है, आपको वो डील करने में हेल्प कर जाते हैं। तो जैसे ये एक कोपिंग स्ट्रैटेजी ही रहा, तो अगर आप इसको पॉजिटिवली कोप कर सके तो योर सिम्टम्स विल डिक्रीज। बट इवन इफ आफ्टर टॉकिंग एंड टॉकिंग टू समवन क्लोज टू यू, यू फील दैट योर सिम्टम्स आर नॉट इम्प्रूविंग, आपके जो नेगेटिव थॉट्स है, जो उदासी है, वो बिल्कुल भी नहीं जा रही है, और आप अपना काम नहीं कर पा रहे, आपकी प्रोडक्टिविटी में वो हैम्पर कर रहा है। और जैसे इवन आफ्टर पॉजिटिव कोपिंग आपने सारा किया, प्लानिंग वगैरह किया, आपने स्लीप इम्प्रूव करने की कोशिश की, और ये सब करने के बावजूद अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको प्रोफेशनल से कांटेक्ट करना चाहिए। और ऐसा है कि प्रोफेशनल से कांटेक्ट करना, उसके बाद जरूरी नहीं है कि आपको वो दवाइयों पे ही स्टार्ट कर देंगे। मेरे पास भी ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिनको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती, उनको सिर्फ एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है कि हाँ, यहाँ पे मैं कहीं कोपिंग ठीक से नहीं कर रहा हूँ, तो बस उतना डायरेक्शन दे दिया, then they can do it themselves. Okay, I'm sorry, I just like to quickly interrupt. Disha ma'am, if I hold you for half an hour more, are you okay with that? Okay. है ना, ठीक है। अभी क्या होगा, हमारा सेशन ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा इसके टेक्निकल रेस्ट्रिक्शन है, तो आई रिक्वेस्ट अदर पीपल प्लीज डोंट लीव, जॉइन अस अगेन। ओके, ये सेशन ड्रॉप होगा, बाद में फिर से वी विल जॉइन बैक। तो वी रिक्वेस्ट इफ यू कैन होल्ड ऑन टू हाफ एन आवर मोर मैम, बिकॉज देयर आर क्वेश्चंस and I appreciate if you answer these questions. So Dr. Vanishri, you have other question or you're done with that? Not at the moment, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much. Okay, Dr. Purushottam, do you have any question?
Cannot hear you, sir. Cannot hear you. आप म्यूट पर है पुरुषोत्तम जी, आप म्यूट पर है. How we convert emotional health into holistic health? Wow. We are using the holistic health. If you go to, I am closely associated with Six Sigma Advanced Control USA, and we focus on more than 30 countries holistic health, inner excellence. How we directly root to each and every cell, neuron, neuroengineering, so that the common man, I'm not talking about the educated or highly educated, how that common man we cover into our net. We are using the various techniques. My God, that looks very difficult question for me. दिशा जी आप बताइए क्या बोलते हैं? For example, ma'am, if you go through our Vedas, mantra guided meditations, sound meditations, music meditations, and we go through, if you closely observe Krishna Yajurveda, in Ghanapat, we found the music that spread that particular mantra is overcoming at present situation. That mantra with us. How we link all these things? Because when we focus on this aspect, we are directly connected to the religious one. So how the common man, a person who do not know anything about that, how we convert the emotional health into the holistic health, so the problems are easily overcome. Okay, so yes, doctor, what do you think? So, according to say modern science and our ancient science, to combine them together holistically, say for happiness. For happiness, you need our ancient, rishis. They might have said it in a different context at that time. Right now, what science has told us for holistic health, what any person, needs in his life for it to, derive complete happiness or to reach a level where he feels satisfaction and happiness both. So what you need, they say, are like 4 chemicals, in your brain. So first is dopamine. So we all know that, might be knowing that dopamine is something जिसका pleasure से relation होता है. तो उसके लिए एक आदमी को लाइफ में गोल्स रखने हैं. तो एक मैं गोल रखूंगी कि मुझे ये करना है हफ्ते के एंड तक, और मैं जब वो कर देती हूँ तो मेरे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, तो उससे एक हैप्पीनेस मिलता है, राइट. फिर दूसरी चीज होती है कि मैं जब लोगों की और बाकी लोगों की मदद करती हूँ या फिर किसी जरूरतमंद की सहायता करती हूँ, मैं मेरे घर में बिना स्वार्थ के कुछ काम कर रही हूँ, तो उससे सेरोटोनिन रिलीज होता है ब्रेन. तो ये हो गए डोपामिन और सेरोटोनिन. फिर तीसरी चीज हो गई एंडोर्फिन्स. तो ये जब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, तो इससे, इस फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, इससे क्या होता है, ब्रेन में ये केमिकल्स रिलीज होते हैं जो भी हैप्पीनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. तो ये हो गया सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन. और एक चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बड़े बड़े फेमस लोग, रिच पावरफुल लोग, why do they go through sadness? What do they don't have sometimes? So they sometimes don't have personal long lasting connections. You have to have personal long lasting connections with loved ones, family, friends, and उससे एक important चीज और रिलेशनशिप का जो बॉन्ड उससे खुशी मिलती. Okay. Hello. Yes. Thank you. So these 4 things have to go hand in hand. Okay. Very nice. Thank you very much. उसी से हमारा complete holistic improvement होता है. एक भी चीज मिसिंग रही तो ये बैलेंस अगर नहीं रहेगा, तो इसीलिए ये वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ वर्क में ही आगे चले जाना और फैमिली की तरफ अगर निग्लेक्ट हो जाता है तो भी आप कहीं अंदर से पूरी तरह हैप्पी नहीं रहो. एंड अगेन मैं स्ट्रेस करना चाहूंगी कि एक्सरसाइज इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट. तो किसी भी तरह आपको यू हैव टू exert yourself, exercise करनी है, and you can select your mode of exercise which suits you the best.
पर वो सिर्फ फिजिकल फिटनेस इम्यूनिटी के लिए नहीं इम्पोर्टेंट होता, बल्कि मेंटल फिटनेस के लिए भी बहुत जरूरी है। तो मैं मेरे प्रिस्क्रिप्शन, अगर मैं प्रिस्क्रिप्शन लिखती हूँ तो आई वुड ऑलवेज एडवाइज डेली एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 5 times a week for 30 minutes. So that is what is prescribed. ये एक प्रिस्क्रिप्शन देती हूँ मैं कि हाँ एक्सरसाइज जरूरी है। Okay, very nice. Thank you. अभी हमारे पास अभी और भी क्वेश्चंस हैं, so let's go to Payal Bhatt. Payal, do you have any question? Hello, Yes, Payal. sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. It's indeed a wonderful session. Ma'am, I have one question. Sometimes what happen, we share each and everything with our close one. So, does their emotional support ease our pain? And if it does, then we will become habitual of it, that we can't overcome of stress our own most of the times, because sometimes we are not able to differentiate. As you said, it's totally agree with the stress and anxiety, but sometimes we common people are not good at differentiate between both the things. So what happens, ma'am, generally that we may habitual of it, that we may require their emotional support most of the times. Okay. So is it good, or I hope you got my question, ma'am. Yes, I got it. Yeah. Okay. So to answer your question, see what in psychiatry or psychology, what we have always learned is nothing is black and white. There is always a very big spectrum of gray in between. Okay. So as I said, social support or emotional support is very important. अगर आप अपनी मन की जो बातें हैं मन ही में रखेंगे, आप किसी को बताएंगे नहीं, तो इट इज नॉट हेल्दी. और ये जो किसी से बातें करना, किसी से हेल्प लेना, ये एक अच्छी कोपिंग स्ट्रेटेजी है. पर अगर आप पूरा टाइम बस किसी एक पर्सन पे डिपेंड ही रहती है कि कुछ भी हो गया तो उनके पास जाके, तो ये अगर ये पैटर्न बन जाती है तो उसको हम डिपेंडेंसी बोल देते हैं. तो वो डिपेंडेंसी फिर एक नेगेटिव कोपिंग स्ट्रेटेजी बनती है. तो ऐसा है कि अगर कभी कभी हमको वो लाइन जो है वो ब्लर होती है, हमको समझ में नहीं आता कहाँ ये ज्यादा हो गया, ये खराब हो गया, पर हमको इसीलिए अगर आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से ये डिस्कस करें तो हम क्या करते हैं कि हम मॉनिटर करते हैं, हम उस जो इवेंट होता है उसको स्टडी करते हैं. और जैसे कि हम जब थेरेपी करते हैं तो हमारा जो पेशेंट होता है वो हमारा को थेरेपिस्ट होता है. ऐसा नहीं है कि हम मैं कुछ बता रही हूँ और पेशेंट और क्लाइंट से सुन रहे हैं, हम साथ में मिलके उस चीज पे काम करते हैं. तो हम पहले तो रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्या ये पैटर्न मेरे लिए सही नहीं जा रहा, मतलब उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है, मैं किसी पे बहुत डिपेंडेंट होते जा रहा हूँ कि मैं खुद की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पा रहा. तो यहाँ पे हम स्टॉप करके फिर हम एक नई पैटर्न बनाते हैं कि ओके अगर ये हुआ तो मैं वंस अ वीक इनसे बात करूंगा, ये करूंगा, और कुछ अगर माइनर प्रॉब्लम हुई तो मैं खुद सॉल्व करूंगा और हर एक चीज की मैं एक नोट बनाऊंगा. और फिर हम नेक्स्ट सेशन में जैसे इसको फॉलो अप करते हैं और हम कंपेयर करते हैं. तो इससे कभी कभी हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारे पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर क्या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और इसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. थैंक यू मैम, रियली सेटिस्फाइड. So now we have Preeti Jain. Preeti, do you have any question? Hello, Preeti, can you hear us? All right, looks like Preeti is still listening to us. Swara Pinjan. Swara, can you hear us? Do you have any question for doctor? No, sir. All right, so now we have Nisha. Sorry, I couldn't hear you. कोई क्वेश्चन है आपके पास में डॉक्टर से पूछने के लिए? आनंद जी, एक दो क्वेश्चन है मेरे पास. जी पूछिए सर. मैं आनंद जैन बोल रहा था. Yes. Yeah. See, my question is that, in the current situation, since kids also is not able to interact with their parents much, physically, but they are going through more on media or through the electronic media like phone, through the
chat, to other means, and most of the time they are getting involved on the screen, and their focus is not on the positive things or things which they can focus and set a goal. Their focus is more on the with the friends and interact with them, and since they have got the devices, computers or mobile devices, they are more into looking things which is coming on in front of them, on screen. They see one video and then another video and then video and then video, and so the things which they need to focus, or the things that they can target for the future, which really set for the long-term goal, on that they are not able to focusing it. Even though we are, like our kids, they are at the age where they have to decide of their future, in which line, which subject they choose, and what is their future, line which they will pick up going forward. But the focus is not finding that. So how to bring them, more focus, so that they can decide what they want to do, and they come out with some kind of setting a goal for their future itself. So they can set a goal and then can going forward. Sure, got it. So, Dr. Disha, please. So first of all, I would like to congratulate all the parents, because even as mental health professionals, we know how tough it is right now to be a parent, because you have to handle your own work, and you also have to handle your children's online school, and with screens and gadgets all around the place, it is chaos. And of course, that's right now, since the teaching itself has moved to an online portal, that screen time you are not able to control. The child is going to be on screen for a certain amount of time. But what you can do is that after hours, restrict your child's screen amount and restrict your own screen amount. So after you finish your work, allot 2 hours where all your screens are off and spend some quality family time. Okay. And say academic goals or career goals right now, I think what is even more important are certain life skills. Okay, so if right now, do not put a lot of pressure on yourself कि मेरा बच्चा कहीं पीछे रह गया है या कहीं वो नहीं कर पा रहा है. ये एक chaotic situation है, ये never before face situation है, और यहाँ पे अपने आप पे इतना प्रेशर मत डालिए कि मैं ये भी करना चाहिए, मैं ये ठीक से नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक से पेरेंटिंग कर रहा हूँ या नहीं. तो ये सवाल को थोड़ा साइड पे रख के अभी जो भी मौका मिलता है उसमें अपने बच्चों को लाइफ स्किल सिखाइए, वैल्यूज सिखाइए. क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं कहूँ कि आपका जो IQ होता है, इंटेलिजेंस कोशेंट, वो आपको एक सीमा तक लेके जाएगा लाइफ में, पर आपका ज्यादा इम्पोर्टेंट EQ होता है, इमोशनल कोशेंट. तो वो आप कोशिश कीजिए डेवलप कराने में चाइल्ड में, क्योंकि IQ जो होता है वो तो बच्चा पैदा होके आया है, वो हम बढ़ा नहीं सकते. That is what is fixed. IQ will not increase, but EQ is what you can enhance. और आपका बच्चे में EQ अगर रहेगा ज्यादा, इमोशनल कोशेंट, तो वो और सक्सेसफुल बन पाएगा. सक्सेस इज नॉट जस्ट डिटरमाइंड कि इंटेलिजेंस कितनी है, पर वो एडवर्सिटी से कैसे डील कर पाता है, उसका एम्पैथी कैसा है, क्या वो दूसरों को समझ पाता है या सिर्फ मैं मेरा देख लूंगा. तो ये जो लाइफ स्किल्स है, अगर वो जैसे वो बहुत होते हैं, अभी उसके बारे में मैं और 1 घंटा बात कर सकती हूँ, पर टू से इट इन शॉर्ट कि ये जो कल्टिवेट अगर करेंगे तो ये अच्छा मौका है, आप भी अपना EQ बढ़ा सकते हैं. और ये अगेन नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि इससे अगेन आप मेंटल हेल्थ इश्यूज को थोड़ा दूर रख सकते हैं. मैडम सॉरी, मैं यहाँ पे दिशा जी, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा. मैडम 1-2 मिनट लेके बताइए ना, EQ कैसे डेवलप करा जा सकता है. थोड़ा सा इस पे फोकस चाहिए होगा, क्योंकि ये बार यही उठकर आता है कि द पीपल विद वेरी स्ट्रॉन्ग EQ कैन एटलीस्ट बाईपास सम ऑफ द डिप्रेशन रिलेटेड इश्यूज. उनकी स्ट्रेंथ अच्छी रहती, मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी रहती. तो EQ को कैसे बढ़ा सकते हैं? थोड़ा सा 1-2 मिनट कैप्सूल, मैगी 2 मिनट नूडल्स. सो EQ में कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वो रेजिलियंस होता है, वो भी उसका एक पार्ट होता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग एक पार्ट होता है. सो जैसे कि अगर इंटेलिजेंस कोशेंट है तो आप एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, पर इमोशनल कोशेंट जो होगा, दैट वुड हेल्प यू विद डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स लाइफ विल थ्रो एट यू. सो दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इज वन मॉड्यूल जो इमोशनल कोशेंट में हमको इम्प्रूव करना होता है.
हमको हमारी रेजिलियंसी बढ़ानी होती है। और एक और चीज इमोशनल क्वोशंट में होती है एम्पैथी, यानी कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है उसे समझना और खुद फील करना। तो हमें सिंपैथी नहीं फील करनी है। कभी कभी एट एन एंटाइटल्ड प्रिविलेज पोजीशन हम किसी के लिए सिंपैथी फील करते हैं कि अरे पुअर फेलो बेचारा, पर वो नहीं। EQ कब होगा कि जब हम फेस टू फेस एज इक्वल्स एक कम्युनिकेशन करें और उनके मन में, उनके शूज में एक माइल चल के देखे और हमको भी फील हो उनका पेन। सो दैट इज व्हाट एम्पैथी इज। तो एम्पैथी डेवलप करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना, ये सब जो बोलेंगे लाइफ स्किल्स है और इससे इमोशनल क्वोशंट स्ट्रांग होता है। एंड ये आगे जाके समझो बिजनेस कर रहा है आप बच्चा या आप जो भी, आपको भी आपका बिजनेस इंप्रूव करना है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज उससे पीपल कनेक्शंस बनते हैं। See, we live where everything is connected. Yes. So what is important with human beings and making them last for a long time. Okay. And इसी से सक्सेस ज्यादा आता है rather than just improving your grades and marks. That is of course at one level, वो भी करना है, you work on that, but both are very important and EQ is something आप जो रोज improve कर ही सकते हो, ऐसा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है. You can keep on improving it. उस पे work कर. Thank you. Now we got here Seema Gautam. Seema, do you have any question? सीमा, आपके पास कोई क्वेश्चन है डॉक्टर के लिए? ओके, हम देखते हैं। अर्जुन इज हियर। अर्जुन, आपके पास कोई क्वेश्चन है मैडम के लिए? बाय द वे, अर्जुन इज अ यूट्यूबर, वेरी फेमस यूट्यूबर, सो अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी। तो बताइए अर्जुन, आपके पास कोई क्वेश्चन है मैडम के लिए? ठीक है, लगता है सब मैडम आपके बोला हुआ सब सोच रहे हैं। केत की आनंद जी, मेरे पास एक सवाल और है, मैं बाद में पूछ लूंगा जब भी आपको लगे कि बाकी लोग कवर हो गए हैं, सो आई आस्क लेटर। आप बोले दीजिए सर, आप यहाँ तक आ ही गए हो तो आप व्हाई डोंट यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी? या नहीं, मैं देखिए एक तो हमने पेरेंट की बारे बात करा कि किड्स आए हैं, उनको हम क्या चीजें वैल्यू सिस्टम दे सकते हैं एट दिस मोमेंट, आवर्स नीड। मैं पूछना चाहूंगा कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स की इस समय की सिचुएशन में उनके क्या चल रहा है और उनको हम कैसे उनका ख्याल रख सकते हैं? You mean the aging parents, right? हाँ, right, correct. Okay. Those are staying close or they are staying away. हाँ, ये जो old age से related issues है, और what is the responsibility of the grown up children to look after their aging parents? मैडम, इसके बारे में आप कुछ बोलेगी क्या डॉक्टर दिशा? यस, तो डेफिनेटली जैसे कि अगर एजिंग पेरेंट्स अकेले रह रहे हैं, अब उनके बच्चे कहीं और है, तो उनको एक एम्प्टीनेस सिंड्रोम पहले से ही होता है कि अकेले है, पूरी लाइफ किसी एक, उनका फोकस उनके बच्चे रहे होंगे। नाउ दे आर इंडिपेंडेंट, तो अभी खाली समय ज्यादा है, तो उनका जो है वरिंग थॉट्स बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये भी एक कॉमन चीज, इनफैक्ट ये पैंडेमिक में काफी बार हमको ऐसे प्रॉब्लम्स भी हमने सुने हैं लोगों से। तो उसके लिए एक है कि हम उनके जो बच्चे, उनको कुछ एडवाइस देंगे, और जो एल्डरली पेरेंट्स है उनको भी, तो कीप ऑन चेकिंग ऑन देम। सो इसमें जैसे कि वही सोशल मीडिया, वो सोशल अपना जो कनेक्टिविटी है, डबल एज स्वॉर्ड है, तो यू हैव टू कीप चेकिंग ऑन देम। वर्चुअली कनेक्टेड रहना है, पर हमको वहाँ जो एल्डरली पेरेंट्स है उनको ये भी बताना है कि आप हर 10 मिनट में चेक मत किया करो या फोन मत किया करो। उनको समझाना है इस बात, क्योंकि उनका साइकी भी कैसे हो जाता है तभी कि क्या कर रहे हैं, और इसमें वहाँ बच्चे जो उनके बच्चों को संभाल रहे हैं, अपना काम संभाल रहे हैं, वो चिढ़ जाता है कभी कभी कि अरे बार बार आप क्यों फोन करते रहते हैं, क्या हो रहा है। तो ये एक वही कम्युनिकेशन एरर हो गया, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गया। और ऐसे ही एक पर्सनली हमने जो केस देखा था, तो उसमें वही दोनों से हमने बात की कि अरे प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो वही गिव सम टाइम टू देम, टॉक टू देम, उनको कम्युनिकेट करो कि नहीं हम ठीक है, उनसे बात करते रहो, उनकी हेल्थ के बारे में ध्यान रखो, और उनको अपने जो हेल्थ के बारे में वो भी काउंसलिंग करो कि वो क्या छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं ताकि वो अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखे। उनको ये भी बताओ कि आप बाहर जितना कम हो सके कम जाओ,
घर का अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि डेफिनेटली उनको ये भी चिंता, इन्फेक्शन की भी चिंता होती ही रहेगी। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो 60 आप लोगों को हो रही है कोविड की वजह से। राइट तो ये चिंता भी स्वाभाविक है, पर वही उनसे पे चेक करते रहिए, उनसे बात करते रहे, और जो एल्डरली पेरेंट्स होंगे उनके लिए मेरी एडवाइस रहेगी कि बार बार वो जो कंटिन्यूस वरिंग चलते रहता है वो ना कीजिए, और थोड़ा माइंडफुलनेस अप्रोच, जैसे उनको एल्डरली पेरेंट्स, उनको तो आदत भी रहती है योगा वगैरह करने, तो उसमें वो अगर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते रहे, जैसे कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना, पास्ट के बारे में ज्यादा ना सोचना कि अरे तब मेरे बच्चे मेरे साथ रहा करते थे, कितने अच्छे दिन थे, अभी तो हम अकेले हैं। तो वो पास्ट में यदि ज्यादा रहेंगे तो उनको मायूसी, डिप्रेशन होते रहेगा। और फ्यूचर के बारे में, कल मुझे इन्फेक्शन हो गया तो कल अगर ये बच्चे बाहर गए, उनको कुछ हो गया तो फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते रहेंगे तो एंजाइटी रहेगी, हमेशा बेचैनी सी रहेगी। तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी पास्ट और फ्यूचर में ना जाते हुए माइंडफुलनेस मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहना, और ये योग मेडिटेशन, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, अभी फोकस करो जो मेरे लिव वन डे एट अ टाइम। तो ये एक मैसेज आप कन्वे कर सकते हैं, एंड दैट विल हेल्प। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, यस जी, जस्ट इसी से थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए, यस जैसे कई बार क्या होता है कि जो साथ में रहते हैं तो थोड़ा सा कई बार आदतों में, कई बार विचारों में, कई बार कुछ और चीजों में डिफरेंसेस रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा तनाव रहता है परिवार में। तो सभी परिवार के सभी मेंबर जो हैं दे आर नॉट नो सेम वेवलेंथ और सेम लेवल, करेक्ट, उसमें थोड़ा सा तनाव रहता है। ओके। उनको कैसे हम थोड़ा सुलझा सकते हैं, थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर सकते हैं? मैं रिफ्रेश, शायद आप ये बोल रहे हैं कि अगर हम साथ में रहते हैं तो बिकॉज दिस टू पीपल आर टू इंडिविजुअल्स, डिफरेंट अपब्रिंगिंग, डिफरेंट कंडीशनिंग, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट एस्पिरेशंस, और हम साथ में रहेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होगा। एंड सिंस यू आर इन द रिलेशनशिप नाउ, अब ऐसा तो नहीं है कि आप छोड़ के चले जाओगे। तो बेसिकली शायद क्वेश्चन इनका ये है कि हाउ टू डेवलप दैट म्यूचुअल टॉलरेंस, रिस्पेक्ट एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स रिलेशनशिप, आई वुड से। शायद इनका क्वेश्चन ये है। आनंद जी, am I right? Is this what you are referring to? हाँ, relationship means even parents is staying together with the kids, Yes, and because of the difference in opinion, or difference in habits, yes, difference in style of working or timing things, तो उन चीजों को लेके हम कैसे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, या कैसे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं और दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हैं उन चीजों में, और एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। ओके, तो अभी जैसे वही ये लॉकडाउन सिचुएशन एंड इवन अभी अनलॉक हो गया है, पर डेफिनेटली सब घर पे ज्यादा रहने लगे हैं, तो हमारा जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है वो ज्यादा हो गया है। और जैसे कि अभी मोस्ट ऑफ अस, हमारे घर इतने तो बड़े नहीं होंगे कि सबके खुद खुद के रूम, सब अपने में बिजी, हमारा डेफिनेटली इंटरेक्शन होते रहता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, घर पे काम बढ़ गए, तो घर पे along with your work from home which you have to do the home work, that is your घर का काम, so all these responsibilities have increased। आप सब एक ही confined quarters में हो, आप बाहर नहीं जा पा रहे, घूमने नहीं जा पा रहे, तो इसलिए there is bound to be increasing tension, irritability। तो ये एक चीज को acknowledge करना है कि ये सब it is quite possible, okay? तो ये एक स्वाभाविक चीज है जो होती रहेगी। एंड ऑल्सो इन द हाउस, अगर फिजिकल बाउंड्रीज इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव, बट व्हाट शुड बी डन इज टू क्रिएट इमोशनल बाउंड्रीज। तो व्हेन कैन यू हैव अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अ हेल्दी रिलेशनशिप व्हेन देयर आर सर्टेन बाउंड्रीज इन अ रिलेशनशिप? Creating these kind of emotional boundaries is healthy, it's important for creating a structure in the family and maintaining it. Again, this is something new because in Indian families sometimes it's really not there, वो नहीं होता है। So hello, can you hear me?
या दिशा जी आपका आवाज आ रहा है, वी एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली। ओके। सो ऐसा हो जाता है ना कभी कभी, हम जब एज अ थर्ड पर्सन हम जब ऑब्जेक्टिवली देखते हैं फैमिली में, तो हर एक पर्सन का ना एक रोल हो जाता है और एक पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर सबके हो जाते हैं, सब उसमें सेट हो जाता है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही क्या होता है, ये एज अ विशियस साइकिल चलते रहता है और इसमें नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिविटी बढ़ती रहती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। तो इसलिए एज अ फैमिली आपको साथ में बैठ के डाइसेक्ट करना है कि किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है और वहां पे एक बाउंड्री खींचनी है। सो नॉट फिजिकल बाउंड्रीज बट इमोशनल बाउंड्रीज, एंड विद इन दैट बाउंड्रीज you have to keep communicating so that you can extend your support. And again, if you can, अगर कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की यदि प्रॉब्लम हो जाती है घर में, तो एक टाइम टेबल, एक व्हील बना दीजिए जिसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर दे इक्वली, सारे टास्क कंप्लीट करने हैं। कभी कभी अगर बच्चों के साथ भी ऐसा कर सके कि अच्छा आपको आपका ये प्लेट रखना है या आपको ये कर देना है, बेड बनाना है, और ये टास्क पे अगर उनको जैसे स्टार दिया, रिवॉर्ड दिया, तो उससे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो जाता है उनको। तो बच्चों के साथ ये टेक्निक्स एम्प्लॉय कर सकते हैं। और आपके जो बड़े पेरेंट्स हैं, एल्डरली पेरेंट्स हैं, उनके साथ बात करते रहना, उनको अच्छी बातें करना, तो ये करेंगे तो उनको रिवॉर्ड लगे। Yeah, thank you very much, madam. Thank you. Madam, I think Anand ji, प्रीति जी आपके एंड से काफी नॉइस आ रहा है, कैन यू पुट ऑन म्यूट प्लीज? यस यस, या थैंक यू। सो और कोई क्वेश्चंस है और या फिर दिशा जी एक क्वेश्चन और लूंगा मैं यहाँ पे, सॉरी मैं क्योंकि काफी अच्छा एडवाइस आपके एंड से मिल रहा है और इट्स वेरी वेरी यूजफुल एंड यू नो प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट भी हम कर सकते हैं। सो थैंक्स वेरी मच फॉर दैट। आई जस्ट वन आई हैव small boy in the house, so we try to engage him in some creative activity, some mental activity or some playing activity, but most of the time he is engaged in the screen playing. Like sometimes he go to the tab, mobile and TV, and then start from morning, sometimes start early in the morning, 10-11 morning AM, goes till late in the night, 10 PM or 11, and then he goes to bed. So if we get involved into some studies or some game playing or some, so he is not that much keen to do it, rather he is more keen to do it. हेलो, So थोड़ा सा इसमें कैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब उस पैटर्न को, या फिर कैसे अदर एक्टिविटी में एंगेज कर सकते हैं? मतलब वही कि आपको शेड्यूल बनाना चाहिए वैसे, और अपार्ट फ्रॉम जो स्कूल का होता है 2-3 घंटे से ज्यादा तो स्क्रीन टाइम नहीं रहना चाहिए। एंड बिकॉज अभी वर्चुअल लर्निंग की वजह से लाइक अवॉइड स्पेशली इवनिंग के टाइम्स के 7 बजे के बाद बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं, बिकॉज उससे जैसे स्लीप पे भी असर बढ़ने लगती है। और कैसे होता है कि ये जो स्क्रीन्स है दे हैव आल्सो बिकम लाइक वेरी एडिक्टिव, एक ड्रग जैसा ही हो गया है, तो बहुत आदत जल्दी पड़ जाती है। जैसे इट्स नॉट जस्ट अबाउट चिल्ड्रन, हमको भी बहुत आदत पड़ जाती है। कभी कभी जब हम स्टडीज करते हैं तो हमने किया कि कितनी बार हम अनलॉक करते हैं फोन जस्ट विदाउट रीजन, इट्स बिकम अ फोर्स ऑफ हैबिट। तो ये हैबिट को चेंज करना डेफिनेटली डिफिकल्ट है। एंड एज आई से, हमेशा पेरेंट्स को शुरुआत खुद से ही करनी है। अगर आप खुद अपना स्क्रीन टाइम कम करोगे और बिल्कुल एक रूल बना दोगे कि दिस इज नो स्क्रीन टाइम, so start with 2 hours of zero screen time, and if that is done then कुछ एक अच्छी चीज दो, पॉजिटिव चीज दो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दो बच्चे को कि ओके ये तुमको एक रिवॉर्ड मिला उसके लिए। और यदि वो नहीं किया तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी तभी इतना इम्पोर्टेंट होता है कि उसने अगर स्क्रीन यूज कर दिया उस टाइम पे तो तुमको ये चीज आज नहीं मिली। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट गुड बिहेवियरल टेक्निक्स होते हैं बच्चों में बिहेवियर मेंटेन करने के लिए। एंड अलॉन्ग विद दैट, कभी कभी अगर आपको लग रहा है कि इससे भी प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं,
अच्छा जी, जस्ट एक और लूंगा मैं very quickly. Because of this pandemic situation, घर में जो ladies हैं, female हैं, they got overburdened because everywhere restrictions there. Now since morning till the night, they are engaged with household work, with kids, with husbands, and all they are managing it. But they also managing their own health and other things. So काफी ज़्यादा stress और workload बढ़ गया. So to avoid it, how we can, what kind of things we can do it to keep them happy and then a lot of remove the workload which they have currently. Okay, तो वही है कि they even the women should not take a lot of pressure on themselves to keep everything perfect at this time, and division of responsibilities be important, especially अगर even the woman is working from home. So like even in my own house, if I am having some work or I have scheduled telemedicine for throughout the day, say my husband will help me with the dishes, and if he has a long call और उनका बहुत busy है तो उस दिन मैं handle कर लेती हूँ. तो घर का काम और ये भी mutually divide होना, और क्योंकि अभी it's like everybody is overburdened with household work also. तो ये divide करते रहना and खुद पे pressure नहीं डालना that everything has to be perfect, और किसी दिन उनको ब्रेक देना कि ओके आज तुम कुछ मत करो, हम करेंगे. अगर आपके बच्चे बड़े हैं, थोड़े टीनेज में है, even they can contribute, they can help by doing their own work. I think So that's taking fantastic. breaks adequately. Yes, that's a fantastic sharing of responsibility is something that we can start. Very nice. Okay. Yeah, very nice. Thank you. Beautiful. Thank you. So we have Ketkit, do you have any question? Yash, do you want to ask any question before we say thank you? So do we have any more questions or? Beautiful. Looks like they are okay. So I think Anand is back, so he can take control. yes. Okay. So Pallavi is the new person joining. Pallavi, do you have any question for us, for Dr. Okay, so I think we are done. Dr. Disha, thank you very much from bottom of my heart. And on behalf of all these people, and this recording will be placed on YouTube and Facebook. And once this is done, I will share the link with you as well. So this will be for open people, where people can come and they learn the things, because these are not the question for these few people. These are there for a lot of us, and we always have this inquisitiveness to understand how we can improve this. तो ये सेशन से बहुत ही एक पॉजिटिव अवेयरनेस आई है, and I know you are very generous with your time. You took time off from your busy schedule, especially on the weekend, for us. So really appreciate. On this note, I really like to thank you very much, and may God bless you. Thank you very much, Dr. Disha. All right, guys. So if all done.